In this question, a wide homogeneous beam of light falls on a concave spherical mirror of radius r parallel to the optic axis. A small opaque disc of radius small r, which is much less than capital R, made of a perfectly heat insulating material, that means there is no conduction of heat, is placed at a distance r by 4 from the pole of the mirror perpendicular to the optical axis. In a steady state, both these surfaces of the disc acquire different temperatures slightly higher than the surroundings. Find the ratio delta T1 by delta T2, where delta T1 and delta T2 are the temperature differences of the left and the right surfaces of the disc and the surroundings. So in this question, we are given that the radius of this spherical mirror is r. The language is slightly ambiguous here. It should have been written as radius of curvature. So radius of curvature of this spherical mirror is equal to r. So I am taking this radius as the radius of curvature of this spherical mirror. So this mirror has radius of curvature is equal to r, and under paraxial approximation we can define a focus whose focal length is equal to r by 2, and we can take paraxial approximation as this radius of this disc is much less than this capital R. For paraxial approximation, the angle should be very small. Suppose this is the optical axis and one ray is coming like this. Suppose the height of this ray is equal to h, and this is the center of curvature. So join this will be the angle of incidence, and you can see here is, if this is radius of curvature, then sine I is equal to this h by r. So for a small I, we need this height should be much less than this capital R. So here also we can apply this approximation, paraxial approximation, and I am assuming that the rays which are useful for us, I am saying that the rays which are useful for us will be approximately paraxial. Now the rays useful for us, this is a very important word in this sentence, the rays useful for us. तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि इसमें हमें करना क्या है. तो यहाँ पर सपोज ये हो गया स्फेरिकल मिरर, दिस इज़ द स्फेरिकल मिरर और कॉनकेव मिरर, एंड लेट्स से दिस इज़ द ऑप्टिकल एक्सिस, एंड हियर देयर इज़ अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस आर इज केप्ट. तो ये डिस्क यहाँ पर इसमें रखी हुई है. इसकी दो सरफेसेस हैं, एक तो लेफ़्ट सरफेस बोल रहे हैं और एक यहाँ पर इसमें राइट सरफेस बोल रहे हैं. इधर दोनों का फाइनल जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन डिफरेंट है. जो लेफ़्ट साइड है उसका टेम्परेचर कुछ T1 हो जाता है, राइट साइड का टेम्परेचर कुछ T2 हो जाता है, और जो डिफरेंस है सराउंडिंग के साथ में वो डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2 है. तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इन पे जो रेज़ आ रही होंगी, इसके दोनों सरफेस पे जो रेज़ आ रही हैं वो किस तरीके से आ रही है. और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस r by 4 के बराबर दिया हुआ है. तो दिस डिस्टेंस इज़ गिवन एज r by 4, और यहाँ कहीं पे इसका फोकस होगा जो कि r by 2 डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द पोल. तो जो रेज़ आ रही है उन रेज़ का थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि वो किस तरीके से आ रही है. यहाँ पर इसमें द रेज़ विच आर कमिंग आर लाइक दिस. तो एक तो मैं इस रीजन में जो रेज़ हैं यहाँ पर उनको कंसिडर करूँगा. तो इस रीजन के अंदर जो रेज़ हैं वो इसके जो लेफ़्ट सरफेस है उस लेफ़्ट सरफेस पे इंसिडेंट हो रही होंगी, और अपने साथ साथ ये कुछ एनर्जी कैरी कर रही होंगी, कुछ इंटेंसिटी कैरी कर रही होंगी, और उससे यहाँ पर इस लेफ़्ट पार्ट को एनर्जी मिल रही होगी. जो राइट पार्ट है यहाँ पे, उस राइट पार्ट को यहाँ पर किस तरीके से एनर्जी मिलेगी. तो आप यहाँ पर अब ये देखो कि जो इस रेडियस आर के अंदर जो रेज़ आ रही थी वो तो ब्लॉक हो गई. वो तो यहाँ पर जो लेफ़्ट पार्ट है उस लेफ़्ट पार्ट से यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी हैं, तो वो तो सिर्फ लेफ़्ट पार्ट पे जा रही हैं, वो राइट पार्ट पे नहीं आ रही हैं. तो दिस रेज आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय दिस लेफ़्ट पार्ट. अब उसके बाद में इसके ऊपर यहाँ पर जो भी रेज़ होंगी, तो ये जो रेज़ हैं, जैसे एक रे अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की लेता हूँ, लेट्स से ये वाली रे, तो ये रे हो सकता है यहाँ पर कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये फोकस पे जाना चाहेगा. तो ये जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन विल गो टू द फोकस, लेकिन फोकस पे यहाँ पर अभी ये जा नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर अब
ये आ गया, इसके आने की वजह से ये इसके राइट पार्ट पे आकर के इंसिडेंट हो जाएगा। तो इसका जो राइट पार्ट है उस पर कितनी रेज आएंगी, उस पर कितनी एनर्जी आएगी, वो एनर्जी को हमें यहाँ पर देखना है इसमें। तो मैं ऐसा करता हूँ इसके लिए कि देख लेता हूँ कि कहाँ तक की एनर्जी इसके पास पहुँचेगी। तो यहाँ से इसको मिलाते हुए मैं यहाँ पर ये रे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर इसमें, और फिर इधर से यहाँ पर इसको मिलाते हुए यहाँ पर ये कुछ ऐसे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये क्यों ड्रॉ किया गया उसको आप यहाँ पर अब ऐसे समझो कि जो रे एग्जैक्टली इस पॉइंट तक आएगी, सही पैरेलल रेज आ रही हैं, तो जो रे एग्जैक्टली इस पॉइंट तक यहाँ पर आ रही है तो वो यहाँ पर इस तरीके से आई। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अब फोकस पे जा पाएगी। ये मैंने एक क्रिटिकल केस यहाँ पे ले लिया, एक बाउंड्री केस ले लिया यहाँ पर इसमें, कि जो रे यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगी तो इस पॉइंट पे आने वाली रे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के वो फोकस पे जा पाएगी, फोकस हो जाएगी। इस तरीके से इस हिस्से में भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर आएगी और ये ऐसे फोकस हो जाएगी। लेकिन अब ये वाला जो सारा यहाँ पर इसमें रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ पर, इस रीजन के अंदर जो भी रे होगी वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो इसके ऊपर जा रही होगी यहाँ पर इधर से, या फिर उसके बाद में इस रीजन के अंदर जो रे होगी इसके अंदर यहाँ पर ये वाला जो रीजन यहाँ पर बनेगा, तो इस रीजन के अंदर जो भी रे आएगी यहाँ से वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है फिर वो इसके ऊपर जा रही होगी। तो ये जो ये वाला रीजन है और जो यहाँ पर ये वाला रीजन है, इस रीजन के अंदर जो भी लाइट यहाँ पर आएगी, जो भी एनर्जी आएगी वो एनर्जी राइट पार्ट पर जाएगी। तो बस हमें यहाँ पर अब ये देख लेना होगा कि लेफ़्ट पार्ट पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है और राइट पार्ट पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, बस उससे हमें यहाँ पर इसका आंसर मिलने वाला है। तो लेफ़्ट पार्ट पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है ऑन द लेफ़्ट पार्ट, ठीक है, ऑन लेफ़्ट पार्ट। तो ऑन लेफ़्ट पार्ट इंसिडेंट एनर्जी, लाइट के वजह से जो एनर्जी इसके पास में आ रही है, तो इंसिडेंट एनर्जी इज़ सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डिस्क का एरिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हुआ, रेडियस इज आर। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने यहाँ पर ये जो बाउंड्री केस यहाँ पर लिया है, ये डिस्टेंस यहाँ पर कितना है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पर आने वाला है, तो उसके लिए आप यहाँ पे थोड़ी ज्योमेट्री यहाँ पे यूज़ करो। ये डिस्टेंस है r/4, दिस डिस्टेंस इज r/4, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है यहाँ पर r/2। तो आप यहाँ पर अब ये सिमिलैरिटी लगा सकते हो इसमें कि ये जो छोटा ट्राइंगल यहाँ पर ये बन रहा है, इसमें यहाँ पर ये डिस्टेंस भी r/4 हो जाएगा, r/4 और यहाँ पर ये रेडियस r हो गया, तो r/4 और यहाँ पे रेडियस r। अब ये जो बड़ा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, दिस बिगर ट्राइंगल। तो ये जो बड़ा ट्राइंगल इस तरीके का ये जो बनेगा, इसमें ये r/2 होगा, डबल हो गया, तो डबल हो गया तो रेडियस भी डबल हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 2r। अब 2r का जो एरिया होगा यहाँ पर, यानी जो 2r के अंदर अंदर जो रेज आ रही हैं वो रेज इस एरिया में से आ रही हैं, दिस एरिया। यहाँ पर ये जो डिस्क बन गया, यहाँ पर जो सर्कुलर एरिया बना है वो 2r रेडियस का है। ये टोटल 4 पे r स्क्वायर एरिया हो जाएगा, पाई इंटू 2r का स्क्वायर। तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर इज़ 4 पे r स्क्वायर। इस 4 पे r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर जो है वो लेफ़्ट पार्ट को मिल गया है, बाकी का जो रिमेनिंग है 3 पाई r स्क्वायर। तो जो 3 पाई r स्क्वायर एरिया है बेसिकली वो राइट पार्ट को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर अब यहाँ पर ये लिख सकता हूँ ऑन राइट पार्ट, राइट पार्ट को कितना मिला, ऑन राइट पार्ट इंसिडेंट एनर्जी। तो दिस विल बी I into 3 pi r square. This much energy is incident on the right part. ऑब्वियस है कि राइट पार्ट पे ज़्यादा एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, लेफ़्ट पार्ट पे जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो कम एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, इसलिए लेफ़्ट पार्ट का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। तो लेफ़्ट पार्ट के टेम्परेचर को मैं T1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे उसमें बताया भी गया, और यहाँ पे टेम्परेचर राइट पार्ट का जो टेम्परेचर है वो T2 है। अब यहाँ पे इनका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो T1 जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है, हल्का से ज़्यादा है। T2 भी सराउंडिंग के टेम्परेचर से हल्का से ज़्यादा है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर अब स्टेडी स्टेट की बात करूँ, तो स्टेडी स्टेट में अगर यहाँ लीजिए यहाँ पे डिस्क है, तो डिस्क में इधर का टेम्परेचर T1 हो गया, इधर का टेम्परेचर T2 हो गया है। तो यहाँ पर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है जो लाइट आ रही है उसके वजह से, और उसके साथ साथ यहाँ से एनर्जी ये रेडिएट भी कर रहा होगा। यहाँ पर हम जो मोड एज्यूम कर रहे हैं वो रेडिएशन का ही मोड एज्यूम कर रहे हैं, आपस में किसी तरीके का कंडक्शन नहीं कर रहे हैं, मटेरियल कंडक्टिंग नहीं है यहाँ पर। तो स्टेडी स्टेट में हम बोल सकते हैं कि लेफ़्ट पार्ट पे जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उतना ही इसको रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस करना चाहिए। अब रेडिएशन के थ्रू जो हीट लॉस होगा उसको हम लिखेंगे कैसे यहाँ पे,
तो क्योंकि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो स्मॉल बताया गया, स्लाइटली यहाँ पर डिफरेंस बताया गया, स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग, तो वी कैन अज्यूम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यहाँ पर अप्लीकेबल अज्यूम किया जा सकता है। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेज कि जो यहाँ पे ये रेडिएशन हो रहा है वो एक तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं लेफ़्ट पार्ट की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो लेफ़्ट पार्ट पे आप ये बोल सकते हो कि फॉर द लेफ़्ट पार्ट दिस आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इनकमिंग हो गया, आउट गोइंग यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग एंड दिस, तो T1 माइनस Ts, जिसको डेल्टा T1 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। इसी तरीके से अगर मैं राइट पार्ट की यहाँ पर बात करूँ तो फॉर द राइट पार्ट हियर इंसिडेंट एनर्जी इज I इंटू 3πr स्क्वायर, this is some constant k and temperature difference is denoted by delta T2. Now finally we have to find this ratio delta T1 by T2, तो जस्ट मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो बहुत सिंपली आप इनका रेशियो निकाल सकते हो यहाँ से, डेल्टा T1 by डेल्टा T2, तो I will be cancelled and only 1/3 will be there, तो डेल्टा T1 by डेल्टा T2 आंसर is simply 1/3।